Hello everyone, welcome to another economic question which was asked in the year 2012 in the civil services examination which is conducted by the UPSC. So let us try to solve this question and understand the concept underlying. So in question it has been asked that recently there has been a concern there has been a concern over a short supply of group of elements called rare earth metals. So why? So इसमें बोला है कि तब कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का सप्लाई में शॉर्टेज हुआ था तो उसके ऊपर कंसर्न रेज हुआ था. सो वाई डिड दैट हैपन? तो ऑप्शंस दिए. फर्स्ट ऑप्शन, चाइना which is the largest producer of these elements has imposed some restrictions on their export. Okay. Second option, other than China, Australia, Canada, Chile, these elements are not found in any country. Concentrate on any. ठीक है. Then third option, rare earth metals are essential for the manufacture of various kinds of electronic items and there is a growing demand for these elements. So even if you are not aware of what this concern was, then also you can reach to correct answer by eliminating the options. ठीक है. So first of all, इतना तो we are aware of कि China is the largest producer of these elements. So China might impose some restrictions. So yeah, that could be the possible answer. So one to आएगा. So eliminate the options which do not contain the first option. So B is eliminated. Then if we look onto the second option which states that other than China, Australia, Canada and Chile, these elements are not found in any country. मतलब कह रहे हैं कि चाइना के अलावा ये जो जितने 3 कंट्रीज़ के नाम दिए, ठीक है, वहाँ पे मतलब कहीं पे भी these rare earth metals, they are not found anywhere in any country. So this is a very extreme statement. What if they are found? How can you prove this statement as right? So second is a very extreme option and very illogical. So we would eliminate the second option. So second जिसमें है, then eliminate the option. So D is also eliminated. ठीक है. Now we are left with only A and C option. So by looking at the option, we are sure that first option is correct. Now we need to analyze only the third option. So it states that rare earth metals are essential for the manufacture of various kinds of electronic items and there is a growing demand for these elements. Yes, ये बिल्कुल सही है because rare earth metals को सच में they are very much essential for manufacturing of this इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है. फिर जैसे सपोज ईवी वगैरह है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो शिफ्टिंग टू ग्रीन एनर्जी, सो उसमें भी दिस रेयर अर्थ मेटल्स बिकम इम्पॉर्टेंट. सो येस, डिमांड ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई में शॉर्टेज है, सो कंसर्न तो रेज होगा. सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो फ्रॉम दिस we have concluded that 1 and 3 would be the correct answer. Now we will analyze कि ये rare earth metals क्या होते हैं. So basically if we go by the name, so they are not rare earth metals because they are not found anywhere, but rare, they are rare because वो इतनी concentration में found होते हैं, they are found in such a less concentration that if we are going for mining, ठीक है, if we are going for mining or extraction, ठीक है, so that would cost a high economic value. So बहुत ज़्यादा economically viable नहीं है वो ज़्यादा, क्योंकि इतना इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है और वैसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए टू एक्सट्रैक्ट दिस रेयर अर्थ मेटल्स. सो इसलिए इंडिया भी है, जैसे आई विल शो यू द डेटा. सो इसलिए ये इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वायबल नहीं है, इसलिए इंडिया इंपोर्ट करता है बाहर से. सो इसलिए उसको रेयर बोला जाता है, रेयर अर्थ मेटल्स को. बेसिकली ये 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है. ठीक है. सो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज़ में यूज़ होता है, विंड टर्बाइंस में भी यूज़ होता है. ठीक है. ईवीज़ में यूज़ होता है, फिर विंड टर्बाइंस हो गया. ठीक है. और भी बहुत सारे में इसका एप्लीकेशन है. और नाउ वी आर शिफ्टिंग टू ग्रीन एनर्जी है. ठीक है. ग्रीन एनर्जी, सो उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. और इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब ग्रीन एनर्जी वी आर
वी आर फोकसिंग ऑन ग्रीन एनर्जी, ठीक है। सो उस पर और नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसका डिमांड है, सो इस वजह से डिमांड, ओवरऑल डिमांड काफ़ी रेज हो जाता है, और इफ़ सप्लाई इज़ नॉट मैचिंग सो कंसर्न रेज होता है, ठीक है। नाउ वी विल लुक ऑन टू सम डेटा, रिसेंट डेटा, कि क्या पोजिशन है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू दिस रेयर अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया के कितने रिजर्व्स है वो देखेंगे, ये PIB का है। सो PIB has stated that India holds world's थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिसोर्सेस, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेस तो है, लेकिन हम लैक कहाँ करते हैं। सो बेसिकली रिसोर्सेस तो है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए इन विच वी आर लैकिंग। सो इसीलिए रिजर्व्स होने के बावजूद भी वी आर फोकसिंग ऑन मोर इम्पोर्ट्स, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी अभी है नहीं। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इंडियाज़ रेयर अर्थ स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश, बजट यूनियन बजट 2026-27 के बजट से, सॉरी, हाँ। सो उससे हमने ये इनिशिएटिव लिया है फॉर दी रेयर अर्थ स्ट्रेटजी के लिए। सो in this we are looking for the establishment of rare earth corridors in कौन से उसमें देखो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये क्या होता है बेसिकली, इनका जो कोस्टल सैंड जो है, सो कोस्टल सैंड्स में ये थोरियम रिजर्व्स और ये सब रिजर्व्स पाए जाते हैं। सो वी आर मोर फोकसिंग ऑन दिस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला के एरिया पे वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश द डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ठीक है। सो ये स्कीम का है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम है, ठीक है, और इतने करोड़ का बजट अप्रूव हुआ है, ठीक है। सो वी वुड बी ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस एंड refine the metals. So yes, this was it, and reserve है पास, लेकिन टेक्नोलॉजी लाइक करते हैं। सो यस, वी आर वर्किंग ऑन इट, और होपफुली ज़्यादा इम्पोर्ट पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, वी वुड होप फॉर दैट। सो यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ C, एंड थैंक यू all.